Welcome to Virtual Learning Network. Operation Management. This is session 4. The profitability of business operations. Topics to be covered include introduction, payback period analysis, stakeholders' requirements, opportunity and ownership cost, discounted cash flow analysis, cost benefit ratios, sensitivity analysis, and break-even analysis. We'll start with the introduction. This session covers payback period analysis, stakeholder requirements, opportunity and ownership cost, discounted cash flow analysis, cost benefit ratios, sensitivity analysis, and last but not the least, break-even analysis. Business are economic entities. One of their main objectives is to sustain profit. हर business का objective होता है ultimately to earn profit, to make profit and to sustain that profit. So, a business involves investing in assets, capital, material, and human resources. Business इन assets को effectively use करके output बनाता है और उसके through वो profit earn करता है. Businesses use these assets to effectively undertake the conversion process of raw materials and components into finished products that are marketable at profit and thus yielding a desirable return on the investments made. Now, there are two fundamental principles. One is the bigger the better. जितना बड़ा होगा, जितना ज़्यादा होगा, उतना अच्छा होगा. Now, this principle says investments and equipments being equal, bigger benefits are preferable to smaller benefits. Second principle is the bird in hand principle. It says जितना जल्दी benefit होगा उतना ज़्यादा अच्छा है. Investments and equipments being equal, early benefits are preferable to later benefits. Now, the key stakeholder of the company are focused on different parameters. First one is return on assets. Second is cash flow. Third is economic value added. Fourth is payback period. Fifth is cost benefit ratio. Sixth is sensitivity analysis. Now we'll begin with payback period. Payback period is the length of time required to cover the cost of an investment. The payback period of a given investment or project is an important determinant of whether to undertake the position or project, as longer payback periods are typically not desirable for investment position. Payback period हम उसे कहते हैं कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की है, जितना आपने इनपुट लगाया है, उस इनपुट का आप रिकवरी कितने टाइम पीरियड में करेंगे. This is called payback period. Payback period is calculated as cost of project divided by annual cash inflows. Payback period निकालने के लिए हम जितना भी हमारा इनिशियल में आउटफ्लो हो रहा है, जितना भी हम लगा रहे हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं जितना ही हमारे पास एंड में आ रहा है. दैट इज एनुअल कैश इनफ्लोज. नाउ पेबैक पीरियड हैज certain importance. It is the most popular method used in industry for making investment decisions. It means
of establishing an upper bound on the acceptable degree of risk where one can appraise the near future with some confidence. This method can be used in firms where the products are not used for a longer period of time. ये उन इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है ये मेथड जहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए यूज नहीं होते हैं, जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसमें रोज चेंजेस आते हैं और ये प्रोडक्ट ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए यूज नहीं होता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज में हम पे बैक एनालिसिस यूज कर सकते हैं। अब जहाँ इम्पोर्टेंस है, एडवांटेजेस हैं, वहाँ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सो there are certain problems with payback period. It ignores any benefits that occur after the payback period and therefore does not measure profitability. ये हर उस बेनिफिट को इग्नोर कर देता है जो पेबैक पीरियड खत्म होने पे आता है। सेकेंड इज ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी इग्नोर करता है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव स्टेक होल्डर्स रिक्वायरमेंट। स्टेक होल्डर का मतलब है एक बिजनेस से या एक ऑर्गेनाइजेशन से जितनी भी पार्टीज कनेक्टेड हैं उनको कहते हैं स्टेक होल्डर, जैसे शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट, कस्टमर्स, सप्लायर्स, रेगुलेटरी एजेंसीज, गवर्नमेंट, कम्युनिटी। ये सब कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़े होते हैं। इनमें से कुछ इंटरनल होते हैं स्टेक होल्डर, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल जैसे एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट, एक्सटर्नल्स जैसे शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, रेगुलेटरी एजेंसीज, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। नाउ फर्स्ट वी हैव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. It is popularly known as ROI. Return on investment is a measure used to evaluate the efficiency of an investment or to compare the efficiency of a number of different investments. Return on investment का मतलब है कि आपने एक जगह अगर इन्वेस्ट किया है तो उस पे आपको कितना आ रहा है, कितना प्रॉफिट आपको रिवर्ट बैक हो रहा है, दैट इज नोन एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ये मेजर करता है कि एक फर्म की एफिशिएंसी कितनी है, वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकता है अपने एसेट से, उसे बोलते हैं हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये एक बहुत सिंपल और वर्सेटाइल मेथड है और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है ये इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। द फॉर्मूला फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज गेन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। टू कैलकुलेट द आरओआई, बेनिफिट का मतलब रिटर्न जो अब आपके पास आएगा इन्वेस्टमेंट से, उसको डिवाइड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। ये इसको हम परसेंटेज के फॉर्मूले में निकाल सकते हैं या फिर रेशियो में भी। तो प्रॉफिट जो होता है उसका मतलब है जितना भी हमारे पास रिटर्न आ रहा है इन्वेस्टमेंट से और जितने भी हमने कॉस्ट लगाई है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रिटर्न आ जाएगा या हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। उस प्रॉफिट को हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट इज ईबीआईटी। EBIT stands for earning before interest and taxes. EBIT का मतलब है कितना प्रॉफिट, कितना रेवेन्यू एक कंपनी ने अर्न किया है बिफोर उस पे इंटरेस्ट लगे और उस पे टैक्स लगे। एक पर्टिकुलर प्रॉफिट जो एक कंपनी ने अर्न किया है उस पे टैक्स लगने से पहले और उस पे इंटरेस्ट लगने से पहले कितना रेवेन्यू था उसको बोलते हैं EBIT। हम EBIT पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं फिर उस पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। सो EBIT is a measure of company's earning power from ongoing operations equal to earnings before deduction of interest payments and income tax। EBIT को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं और इसको हम ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं।
सो इसका ROI का फॉर्मूला हम EBIT के थ्रू भी निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है EBIT 1 - T, T stands for टैक्स रेट, डिवाइडेड बाय एसेट्स, जितनी हमारी एसेट्स हैं, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ROI इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनकम आफ्टर टैक्स टू द वैल्यू ऑफ एसेट्स इंडिकेटेड एज अ परसेंटेज। Next we have ROA. ROA means return on assets. ROA is generally an indicator of how profitable a company is relative to its assets. एक कंपनी जितना assets लगा रही है, जितने उसके assets हैं, क्या वो उतना profit earn कर पा रही है, वो कैलकुलेट करता है return on assets. It gives an idea as how efficient management is at using its assets to generate earnings. एक मैनेजमेंट अपनी assets कितना लगा रही है, उसको कितने earnings हो रहे हैं. It is calculated by dividing company's annual earnings by its total assets. कंपनी की जितनी ही इनकम है at the end of the year, उसको हम total assets से कंपनी की डिवाइड करते हैं और तब हमारे पास ROA आ जाता है। नेक्स्ट वी हैव अपॉर्चुनिटी एंड ओनरशिप कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओनरशिप कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली होती है कि अगर आपने कोई और अपॉर्चुनिटी मिस करके कहीं और इन्वेस्ट किया है तो उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मीन्स इट इज द profit foregone by investing funds in one project instead of another project. So an opportunity cost is the cost of a missed opportunity. It is the opposite of the benefit that would have been gained had an action not been taking the missed opportunity. ये वो बेनिफिट होता है जो हम गेन कर सकते थे अगर हम उस जगह इन्वेस्टमेंट करते। And this concept is basically used in economics. Now ownership cost होती है कि आपने कितना पैसा, कितनी कॉस्ट लगाई है एक एसेट को खरीदने में और उसको मेंटेन करने में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंक्लूड करता है। And so an ownership cost includes estimates of all direct and indirect costs associated with an asset or acquisition or its entire life cycle. For example, in order to keep the car running for more 1 year, some capital expenses would need to be incurred. So the cost of continued ownership is the opportunity cost plus the additions or renewals to keep the car running. Suppose एक कार है, आप चाहते हैं कि वो नेक्स्ट ईयर भी अच्छे से स्मूथली वर्क करे, उसमें आपने कुछ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस खर्च किए, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इनकर किए, वो एक्सपेंसेस हमारी ओनरशिप कॉस्ट हो जाएगी, दैट इज नोन एज ओनरशिप कॉस्ट। नेक्स्ट वी हैव डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की, और ये पे बैक पीरियड एनालिसिस से थोड़ा आगे है। पे बैक पीरियड एनालिसिस जो होती है वो नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक होती है, उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करते हैं, पर जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक होती हैं ये डिस्काउंटेड होती हैं, इसमें हम कैश फ्लोज कंसिडर करते हैं और इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कंसिडर करते हैं। सो अ वैल्यूएशन मेथड यूज्ड टू एस्टिमेट द अट्रैक्टिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इज नोन एज डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, that is DCF, uses future free cash flows projections and discounts them to arrive at a present value, which is used to evaluate the potential for investment. If the value arrived at through DCF
analysis is higher than the current cost of the investment, the opportunity may be a good one. डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं, जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इन सब का अलग अलग अपना अपना एडवांटेज है। नेक्स्ट वी हैव कॉस्ट बेनिफिट रेशियोज। कॉस्ट बेनिफिट रेशियोज बेसिकली इनको हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी बोलते हैं, या बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस, दैट इज CBA और BCA रिस्पेक्टिवली। और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से हम अपनी प्रोजेक्ट की कॉस्ट, उसमें कितने एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं, कितना मनी उसमें लगा है, कितना रिसोर्सेज लगा है, और उसको कितनी इनकम हुई है, कितनी बेनिफिट्स हुई हैं, वो कैलकुलेट करते हैं हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस for calculating and comparing benefits and cost of a project, decision or a government policy. Cost benefit analysis जो है वो दो तरह की होती है बेसिकली, discounted cost benefit ratio analysis and undiscounted cost benefit ratio analysis. जो undiscounted cost benefit ratio analysis होती हैं वो भी दो तरह की होती हैं, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस वो होती है जहाँ पे हम हर चीज का बेनिफिट लेते हैं और फिर उसको इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से डिवाइड कर देते हैं। और नेट अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो बेनिफिट रेशियो वो होती हैं जिसमें हम बेनिफिट से डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर देते हैं। वी डू नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन इन नेट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। सो इन जो अनडिस्काउंटेड कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जब हम नेट पे कैलकुलेट करते हैं तब हम बेनिफिट्स को फेस वैल्यू पे लेते हैं। Next we have discounted cost benefit ratio. Discounted cash benefit ratio is the ratio of the present value of future benefits at a specific rate of discount to the present value of the present and future investment outlays and their cost at the same rate of discount. Cost benefit ratios के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे वो जितनी भी इनकम होती है चाहे वो रिसीव करी हो, और जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और चाहे जितने भी एक्सपेंसेस खर्च किए हैं वो सब लेता है, सारा इंक्लूड होता है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो में। दूसरा इसमें क्या होता है, ये हमको इंक्रीमेंटल कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बताता है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। CBA जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है उसके दो पर्पस होते हैं। फर्स्ट इज टू डिटरमाइन इफ इट इज अ साउंड इन्वेस्टमेंट और डिसीजन। पहला ये जानने के लिए कि जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वो ठीक है, वो साउंड है, वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं, वो जस्टिफाइबल है कि नहीं, फीजिबल है कि नहीं। और दूसरा, अगर हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो उनको कंपेयर करने के लिए, टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर कंपेयरिंग प्रोजेक्ट्स। इट इन्वॉल्व्स comparing the total expected cost of each option against the total expected benefits to see whether the benefits outweigh the cost and by how much. Next we have sensitivity analysis. Sensitivity analysis is the study of how the uncertainty in the output of a model can be apportioned to different sources of uncertainty in the model put. Sensitivity analysis is a way to predict the outcome of a decision if a situation turns out to be different compared to key prediction. Sensitivity analysis बेसिकली हम यूज करते हैं कि हमारे पास कोई अनसर्टेनिटी आ जाए फ्यूचर में, हमारे प्रोजेक्ट में कोई अनसर्टेन या अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन हमको फेस करनी पड़े, तो उस सिचुएशन से लेकर हमारा आउटकम क्या होगा उसको प्रेडिक्ट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम सेंसिटिविटी एनालिसिस यूज करते हैं। इट बेसिकली आंसर्स द क्वेश्चन लाइक अगर ऐसा फ्यूचर में होगा तो परफॉर्मेंस क्या होगी हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, हमारे बिजनेस की मार्केट में, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और इसका मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट वी हैव ब्रेक इवन एनालिसिस।
ब्रेक इवन एनालिसिस को हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी कहते हैं, और ये कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड होती हैं। इसका पहला एजम्पशन होता है कि कॉस्ट सिर्फ दो ही तरीके से लेते हैं, या तो फिक्स्ड कॉस्ट होगी या तो वेरिएबल कॉस्ट होगी। नाउ फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कांस्टेंट रहती है, चाहे आप 1 आउटपुट दें, 1 प्रोडक्ट की आउटपुट दें, चाहे 1000 प्रोडक्ट की आउटपुट दें, चाहे आप 1 लाख प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी। पर जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट होती है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है जब हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमारे आउटपुट के साथ डायरेक्टली वेरी करती है। अगर हमारी आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो हमारी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। इसका तीसरा एजम्पशन होता है ब्रेक इवन एनालिसिस का कि जो इन्वेंट्री में चेंजेस होते हैं, जो स्टॉक में चेंजेस होते हैं, वो निल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब कुछ भी प्रोड्यूस करो आप एक टाइम पीरियड में, वो उसी टाइम पीरियड में बेच भी दिया जाता है। इसका फोर्थ असम्पशन ये होता है कि द फर्म आइदर प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट और इफ इट प्रोड्यूसेस मोर देन 1 प्रोडक्ट इट मेंटेन्स द सेम प्रोडक्ट मिक्स। एक फर्म अगर वो एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है या फिर वो एक से ज्यादा कर रही है तब भी उसका प्रोडक्ट मिक्स सेम रहेगा। तो जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, यानी कि जो हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस है, ये एग्जामिन करता है कि प्रॉफिट या लॉस कितना होगा जब हम अपनी आउटपुट इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे। Now it also includes manufacturing cost and non-production cost. Now we have certain questions. Do it yourself. First one is describe the concept of payback period. Second is describe the break-even analysis. That's all for this session. Thank you.